Everybody, now let us start the topic about the vertical section. Yesterday we have just gone through the revision for the circular motion, different terms of circular motion. I hope that all of you have gone through the notebook completely. I can only hope from here. I cannot check now. So if now the parts of vertical circular motion are the part of lesson work from the NCRT. In NCRT, this part of vertical circular motion is not included in the topic of motion in plane. It is covered in the topic called as motion in the work energy power. सेव्ह केलं ना सर? सेव्ह करायचं परत? ठीक आहे, ओके. नो काळी पट्टी आहे. क्लिक करा पार्टिसिपंट्स. साइडलाइन बरोबर पट्टी. Now about the circular motion of particle along circumference of circle. That circular motion may be in the horizontal plane. That circular motion may also be in the inclined plane, any plane. The object and level of center. Object and the center are at the same level. There is a horizontal circular motion in the horizontal plane. Whereas if the object is moving with the help of same string, but its plane is vertical like this, then it is the vertical circular motion. The motion of the object in the vertical circular motion. Now this one is the horizontal circular motion. The motion of the object along circumference of circle is circular motion. Maybe in the horizontal plane, maybe in the vertical plane also. Now you have to learn motion of object in vertical plane. Before starting this vertical circular motion, we should know the difference between horizontal and vertical. कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल में हो रहा है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है. डिफरेंस क्या है बेसिक दोनों में? सपोज आप लोग मेरी गो राउंड में बैठे हो, मेरी गो राउंड ऐसे गोल गोल घूमता है जमीन पे, या फिर आप वो टॉय ट्रेन में बैठे हो, टॉय ट्रेन का सर्कुलर ट्रैक है, आप टॉय ट्रेन में बैठे हो, चल रही है गाड़ी ऐसे, सर्कुलर मोशन. बट दैट सर्कुलर मोशन इज इन विच प्लेन? हॉरिजॉन्टल प्लेन. नाउ इफ यू आर सिटिंग इन अ मेरी गो राउंड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे. So you are performing circular motion. This circular motion is in which plane? ये merry-go and that in. Then on horizontal track, horizontal circular motion. If the track is circular, giant wheel in the vertical plane, there is vertical circular motion. One basic difference in between these two is these differences can be explained with the help of energies possessed during the motion. The potential energy because of motion is the kinetic energy. Potential energy given by mgh, kinetic energy given by half mv square. So potential energy and kinetic energy, they are the two energies. Kinetic energy depends on speed. Speed of the motion may be constant, may be variable. Motion may be either horizontal plane or vertical plane. Speed उसका constant भी हो सकता है, speed उसका variable भी हो सकता है. Horizontal circle है, स्पीड कांस्टेंट रखा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड वेरी किया तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. वर्टिकल सर्कल पे चल रहे कोई ऑब्जेक्ट, स्पीड कांस्टेंट रखा तो यूनिफॉर्म, स्पीड वेरी हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म. मींस स्पीड कैन बी कांस्टेंट, स्पीड कैन बी वेरिएबल इन हॉरिजॉन्टल as well as vertical circular motion. But the difference is about the potential energy. Potential energy depends on the height mgh. In horizontal circular motion, take the example of fan blade. What about the height of the fan blade from the ground? फैन अगर एट रेस्ट है तो भी उतनी हाइट, फैन मोशन में है तो भी उतनी हाइट. एक पार्टिकल फैन ब्लेड का अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, एनीवेयर इट इज, इट्स हाइट फ्रॉम द कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट, हाइट कांस्टेंट तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट. फैन बंद है तो भी उसको पोटेंशियल एनर्जी है, शुरू है तो भी पोटेंशियल एनर्जी है, और जितनी है उतनी ही है. क्यों? मास कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, हाइट आल्सो नॉट चेंजिंग, हाइट उसकी जितनी है उतनी है. मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट.
only what can change, that is the kinetic energy. स्पीड बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, स्पीड कम किया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, स्पीड कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है. Means in horizontal circular motion, kinetic energy may be constant, may be variable, but potential energy can never change. उसकी potential energy हमेशा constant ही रहेंगी with respect to the given reference. But in vertical circular motion, now take the example of windmill. ये फैन हो गया, फैन हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा. टेक द एग्जांपल ऑफ विंडमिल. विंडमिल के केस में टिप ऑफ द फैन ब्लेड, फैन का ब्लेड पहले अभी नीचे है, ये पॉइंट नीचे जमीन के पास में, गया ऊपर, काफी ऊपर चला गया, अभी और नीचे आया और ऊपर गया. व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? अभी यहाँ पे है, यू कैन ऑब्जर्व द टिप ऑफ द नेल्स. नाउ अभी यहाँ पे है, ऊपर 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 जा रहा है, हाइट मैक्सिमम हो गई, फिर नीचे आने लग गया, कम हो गई. सो इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी हाइट अभी जमीन से इतनी हाइट पे है, ऊपर जा रहा है, हाइट बढ़ती जा रही, हाइट बढ़ते जा रही, हाइट मैक्सिमम हो गई, कम होते जा रही, कम होते, हाइट मिनिमम हो गई. मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड कंटिन्यूअसली चेंजेस, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. Increasing, decreasing means height of the object with respect to the ground continuously changes in vertical circular motion. Speed, speed may be constant, may be variable. Naturally speed variable रहेगा क्योंकि naturally gravity उसको affect करेंगी. But with the help of some external source of energy, that speed may be variable. वो speed जो है आप उस speed को भी vary कर सकते हो, constant रख सकते हो. तो एक basic difference between the horizontal and vertical circular motion. I will just write as a vertical circular motion, जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, that is vertical circular motion. In this vertical circular motion हम दो एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी. वर्टिकल horizontal circular motion, any motion, potential energy is given by mgh and kinetic energy is given by half m into v square. ये potential energy, वो kinetic energy. As the particle moves, allow all, admit all, sir, admit all. So potential energy is given by mgh, kinetic energy given by half mv square. Potential energy mgh, kinetic energy half mv square. So now as the particle go on moving in vertical circle, potential energy remain always constant की variable. In vertical circular motion, potential energy always changes, हमेशा चेंज होंगी. पार्टिकल कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, लाइक दिस. तो हाइट चेंज होते जाएंगी. इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, एच फॉर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, इट रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि उसकी हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कभी चेंज नहीं होंगी. कहीं भी गया तो उसकी हाइट एच विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रिमेन सेम. यहाँ पर एच चेंज होंगे. As h changes, potential energy changes. H does not change, potential energy does not change. फैन का एग्जांपल, यहाँ विंड का एग्जांपल ले सकते. What about the kinetic energy? It depends on the velocity. If the speed is constant, speed constant है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेंगी. अगर स्पीड वेरिएबल है, स्पीड वेरीज, देन काइनेटिक एनर्जी आल्सो वेरीज, दैट इज इन द नॉन यूसीएम. जब स्पीड कम ज्यादा होता है, दैट इज नॉन यूसीएम. सो हॉरिजॉन्टल रहो चाहे वर्टिकल रहो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी वेरी भी हो सकती है. काइनेटिक एनर्जी में भी कांस्टेंट, में भी वेरिंग. काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी वेरिंग भी हो सकती है. दोनों के यूसीएम में कांस्टेंट, नॉन यूसीएम में वेरिंग. मतलब fact which is not going to change is about this energy. Always changes, never changes. Which energy? Potential energy. In horizontal circular motion, potential energy will never change, and vertical circular motion, potential energy will never. Energy in both the motions, either horizontal or vertical, will depend upon the uniformity, non-uniformity of the motion. Uniform circular motion, constant. Motion horizontal है, vertical है, inclined है, doesn't matter. Speed constant, kinetic energy constant. Speed variable, kinetic energy variable. So kinetic energy may be constant, may be variable in horizontal as well as vertical circular motion. So ये एक basic difference. One more difference is about the effect of gravity. In which of the motion gravity will affect and in which of the motion gravity will not affect. सर sound check करा मत सर. Gravity will affect, gravity will not affect. Gravity कधी affect करेल, कधी affect करणार नाही. Now I will take simple example. Suppose
आपको बोला कि आपको ग्राउंड पे गाड़ी चलानी है, एक ग्राउंड पे ऐसा एक ट्रैक बना दिया सर्कुलर, सर्कुलर ट्रैक पे आपको बोला कि जाओ वहां गाड़ी चलाओ, आपकी ये गाड़ी यहाँ पर है, अभी गाड़ी चल रही है, गोल गोल गाड़ी घूम रही है इस ट्रैक के ऊपर, like, सब जो एट सम ग्राउंड है घर में, ऐसा टॉय ट्रेन जैसा है, प्लेन सरफेस है, कभी कभी पॉइंट पे गाड़ी बंद पड़ गई, इंजन फेल, ब्रेक फेल हो गया सब, तो गाड़ी कंटिन्यू, द मोशन विल स्टॉप, विल, रुकने के बाद में वेट है क्या बॉडी को, वेट तो हमेशा है, वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्राउंड उसको रिएक्ट करेंगी, वेट एक्ट्स ग्राउंड रिएक्ट्स, वेट की ग्राउंड, वेट की एक्शन ग्राउंड की रिएक्शन, ड्यू टू दिस वेट, इस वेट की वजह से, मतलब की वजह से ये बॉडी अब आगे जाएंगी पीछे, विल मूव विल नॉट मूव, मीन्स ग्रेविटी विल अफेक्ट द मोशन की विल नॉट अफेक्ट द मोशन, की ग्रॅव्हिटीमुळे स्पीड वाढला, ग्रॅव्हिटीमुळे स्पीड कमी झाला, हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन, हा जमीन पे, ऑन ग्राउंड ड्यू टू ग्रॅव्हिटी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज की नॉट अफेक्टेड, ऑन ग्राउंड द स्पीड विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस ग्रेविटी और वेट। एग्जाम्पल ऑफ वन ओवर ब्रिज, एक ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज के ऊपर से आपकी गाड़ी जाने वाली है, एक गाड़ी आपकी अभी जस्ट ऊपर चढ़ रही है, ब्रिज के ऊपर असेंडिंग है, इट इज, तो असेंडिंग करते वक्त ग्रेविटी अफेक्ट की डजंट अफेक्ट, ग्रेविटी इस गाड़ी का तो वेट है जो इसको नीचे खींचेगा, ड्यू टू दिस वेट और कंपोनेंट ऑफ वेट, द मोशन ऑफ व्हीकल जब असेंड कर रहा है तब एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड की रिटार्डेड, वर चढ़ताना जब ऊपर जा रहा है तो उसका मोशन एक्सेलरेटेड की रिटार्डेड, वही गाड़ी जब नीचे आ रही है इधर, तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट, रिटार्ड की नो इफेक्ट, यहाँ पे देखते, यहाँ पर ड्यू टू दिस ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी मोशन ऑफ दिस व्हीकल ऑन द सर्कुलर ट्रैक, मोशन ऑफ व्हीकल ऑन सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पर अगर ये बंद हो गई तो ग्रेविटी की वजह से जाएंगे पीछे आएंगे कि विल नॉट मूव। सेकेंडली यहाँ पर अब कोई गाड़ी ब्रिज चढ़ते चढ़ते फेल हो, ब्रेक फेल, इंजन फेल, अब क्या होगा, गाड़ी वहीं रुक जाएंगी, नहीं ऊपर चली जाएंगी गाड़ी, इंजन बंद हो गया, ब्रेक भी फेल हो गए, गाड़ी ये ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगी या नीचे आएंगी, या फिर इधर से अगर गाड़ी फेल हो गई तो ग्रेविटी की वजह से ऊपर जाएंगी, नीचे आएंगी कि वहीं रहेंगी, केस ग्रेविटी विल अफेक्ट, gravity will affect on the vehicle on horizontal circular track, on the vehicle in a vertical circular path, that is on the overbridge, where the gravity will affect। देखो जैसे आप लोग क्लास में आंसर देते हो फटाफट, वैसे आपके घर से भी आंसर निकालने को होना, हम लोग यहाँ अनम्यूट करके सुन सकते हैं आप लोग सही में आंसर दे रहे कि नहीं दे रहे, आप लोग आंसर देना, इसका मतलब यू आर रियली कनेक्टेड। जैसे सर ने पूछा कि भैया ग्रेविटी अफेक्ट डज नॉट अफेक्ट, अनम्यूट करके देखो सही में आवाज आती कि नहीं आती, ग्रेविटी विल नॉट अफेक्ट, ग्रेविटी विल अफेक्ट, विल नॉट अफेक्ट, तो ग्रेविटी विल अफेक्ट, तो यूर कंसंट्रेशन कनेक्टिविटी वी कैन चेक ओवर हियर, कि सही में आपके मुंह से आंसर निकलता है नहीं निकलता घर पे, राइट रॉन्ग जो भी है, जैसे क्लास में ऑटोमेटिकली आप आंसर देते हो वैसे ही वहां से भी आने को होना, मतलब यू आर इन द क्लासरूम इटसेल्फ। So gravity will not affect in horizontal circular motion, whereas gravity will affect in vertical circular motion. In vertical plane, during motion in vertical plane, gravity will affect. Motion in the horizontal plane, gravity will affect, will not affect, will not affect. ये दो पॉइंट डिफरेंस है, एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, वर्टिकल में चेंज होंगी, वर्टिकल में कभी कांस्टेंट नहीं रह सकती, हॉरिजॉन्टल में कभी चेंज नहीं हो सकती, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक का तो कुछ नहीं, चेंज भी हो सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती है। एट द सेम टाइम ग्रेविटी कहाँ अफेक्ट नहीं करती, कहाँ करती है, ग्रेविटी विल अफेक्ट द मोशन ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड ग्रेविटी विल नॉट अफेक्ट द मोशन इन वर्टिकल प्लेन, विल अफेक्ट इन वर्टिकल प्लेन, विल नॉट अफेक्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये दो पॉइंट डिफरेंस। अब ये एनर्जी के बारे में पढ़ना है आगे, सारे डेरिवेशंस बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करने हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो वो सब पढ़ने के लिए आपको सर्कुलर मोशन, अगर किसी पॉइंट की आपको हाइट वगैरह निकालनी है, सपोज सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, हाइट वेरी होने वाली है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में आपने कभी हाइट के बारे में सोचा भी नहीं, काम भी नहीं था, लेकिन अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको हाइट का काफी काम पड़ने वाला है, कौन से पॉइंट की हाइट कितनी आएंगी, कहाँ से गिनना हाइट, हाइट गिनने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने के लिए देयर शुड बी सम रेफरेंस, तो वो रेफरेंस कौन सा पॉइंट लिया जाता, दैट रेफरेंस विल बी टेकन एज द बॉटम मोस्ट पॉइंट। लेट अस लेबल डिफरेंट पॉइंट्स इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
let this be center of circle, that is O. Highest point एकदम A, first class, बिल्कुल highest point A, bottom B, bottom का B, level of center का C, और उसका diametrically opposite D. तो AB C the diameters, AB diameter, CD diameter, OA OB OC OD are the simply radius of circle. These are different terms which are going to use. So A is the highest point, B is the point, C is the level of center, D is also level of center. Now height measure करनी है तो reference लगेगा. All heights are to be measured with respect to bottom. सारे पॉइंट्स की बॉटम से गिनना. कुछ में सेंटर से रेफरेंस लेके दिया हुआ है, आंसर में फर्क नहीं पड़ता, बट इट इज फ्रॉम द बॉटम से हाइट गिनना. तो हाइट एट द बॉटम, बॉटम से गिननी है हर एक पॉइंट की. तो बॉटम की हाइट बॉटम से कितनी रहेंगी, बी की हाइट बी से गिनना है, कितनी आने वाली है 0. देन हाइट ऑफ द पॉइंट सी, सी की हाइट कितनी है, सी की हाइट है ओ बी, ओ बी क्या है सर्कल का रेडियस. तो हाइट ऑफ द पॉइंट सी इज इक्वल टू व्हाट आर. हाइट ऑफ द पॉइंट C, level of center is equal to nothing but radius of circle R. Highest point है A, इस पॉइंट की हाइट ग्राउंड से गिननी है, ग्राउंड से यहां तक, ग्राउंड से यहां तक कितनी हाइट उसकी R प्लस R, दैट हाउ मच, ट्वाइस R. हाइट ऑफ A कितनी है, ट्वाइस R. अब ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हो गए, बॉटम, लेवल ऑफ सेंटर, हाईएस्ट पॉइंट. अगर एट रैंडम इन बिटवीन कोई भी पॉइंट दिया, उसकी हाइट कैसे निकालना. सपोज मैंने यहाँ पूछा आपको, ये पॉइंट P है सपोज, इसकी हाइट निकालनी. अब इसकी हाइट R से कम है, बिटवीन 0 टू R, लेकिन ऐसा बता के नहीं चलेगा, यू हैव टू गिव द एग्जैक्ट वैल्यू. एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए सपोज उस पोजीशन को जोड़ने वाला ये रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का एंगल विद द वर्टिकल इज थीटा. ये एंगल अगर थीटा है तो हम इस पॉइंट की हाइट अब निकाल सकते हैं. हाउ टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस पॉइंट, हाइट ऑफ पॉइंट P कैसे निकालना. अब ये हाइट ऑफ पॉइंट P निकालने के लिए इफ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस पॉइंट P, height of the point P कैसे निकाल सकते हैं. To find that you can simply consider one triangle and use the sin theta cos theta. From that you can find the height of that point. तो height of this point कैसे निकाल सकते हैं आप. ये OB क्या, रेडियस, OP भी क्या सर्कल का रेडियस, OP इक्वल टू R. एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से डायमीटर, डायमीटर को पैरेलल, इस लाइन को परपेंडिकुलर से Q पॉइंट, OP बन गया. सपोज इस पॉइंट की हाइट ग्राउंड से लेके H इतनी है जो आपको निकाल, Q हो गया आपका H, BQ हो गया H. वैसे OP कितना था R, तो फिर OQ कितना बचा, O से लेके Q तक, दैट इज R माइनस H. पूरा R, उसमें से H गया, बचा R माइनस H. ये R माइनस H, ये R, ये ट्राइंगल. मैं इस ट्राइंगल को फिर से निकालता. टू फाइंड हाइट, टू फाइंड H एट एनी पोजीशन, किसी पोजीशन की हाइट निकालनी है तो उस ट्राइंगल को कंसीडर करके हम निकाल सकते हैं. यू कैन फाइंड यूजिंग दैट ट्राइंगल. ट्राइंगल को यूज किया, ट्राइंगल को यूज करके ये O, ये P, ये Q, ये एंगल थीटा. OP is the radius of circle, OQ is R minus H. Now use cos theta. What is cos theta? Cos theta is adjacent upon hypotenuse. Adjacent is R minus H and hypotenuse is R. So it is now R cos theta is equal to R minus H, H, R cos theta, H equal to R minus R cos theta. R common निकालो, 1 minus cos theta. तो H इक्वल टू R इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा. इसको अब याद रखना आप लोगों को. सिंपल अगर 10-12 बार इसको यूज कर लेंगे तो याद रहेगा इजीली, क्योंकि हर बार आप डेरिवेशन तो नहीं करेंगे हाइट निकालने के लिए. ये कोई न्यूमेरिकल थोड़ी है फिजिक्स का, ये हाइट आपको निकालते आएंगी आप कहीं भी. तो एंगल थीटा अगर दिया हुआ है तो हाइट फाउंड आउट. हाइट एट पॉइंट P इज R इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा इज पॉइंट P. अब ये फार्मूला करेक्ट है कि नहीं वेरीफाई करते, जस्टिफाई करते. इस फार्मूले को जस्टिफाई करने के लिए थीटा की अलग अलग वैल्यू रख के देखते हैं कहाँ थीटा कितना रहेगा. OP, एंगल बिटवीन लाइन OB एंड OP इज थीटा, बरोबर. अगर OB और OP कोइंसाइड हो गए तो एंगल कितना रहेगा, ये पॉइंट P B पे आ गया तो फिर एंगल कितना रहेगा, OB एंड OP कोइंसाइडिंग, कोइंसाइडिंग तो कितना रहेगा एंगल, थीटा इक्वल टू व्हाट 0. वही अगर पॉइंट P C पे पहुंच गया
यहाँ पे था, घूमते घूमते यहाँ थीटा हो गया 10 20 30 60 70 80, यहाँ कितना हो गया, फिर एट सी चला गया, तो ओ बी एंड ओ सी व्हाट इज द एंगल 90 डिग्री। यहाँ थीटा कितना हो गया सी पे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। वही हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए तो फिर ए पे पहुंच गए, ओ बी ए ए तक लाइक दिस, तो ये रहा पूरा एंगल। तो पूरा एंगल कितना आएगा, व्हाट इज योर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये वैल्यू फार्मूले में डाल के देखते ये हाइट्स आती या नहीं आती। एट द बॉटम, एट द बॉटम थीटा इज 0, put theta equal to 0, cos 0 equal to 1, 1 minus 1 is 0, 0 into r is 0। लेवल ऑफ सेंटर, यहाँ की हाइट निकालनी है मुझे, what is theta equal to 90, what is cos 90, 0, 1 minus 0 1, 1 into r r, highest point theta is 180, cos 180 is minus 1, 1 minus minus 1 that is 2, so equal to twice r। सब जगह की हाइट इससे करेक्टली निकलती, फार्मूला जस्टिफाई हो जाता है। So by this way you can find the height of any point with respect to bottom. Bottom point height इस तरह से निकाल सकते हैं. Easily it can be calculated. At any point height can be easily found out. Using which equal to what? R in bracket 1 minus cos theta. Height at any point P is R in bracket 1 minus cos theta. इसका आपको आगे काम है. बॉटम में कितनी हाइट है 0, यहाँ कितनी है r, यहाँ कितनी है ट्वाइस r। तो ऐसे एक बार हाइट मालूम हो गई तो हाइट से कौन सी एनर्जी निकलती, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, तो हाइट मालूम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी मालूम निकाल सकते हैं हम लोग। एट एनी पॉइंट यू कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो वंस अगेन आई विल ड्रॉ द सेम फिगर टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशंस। आप लोगों को इसमें से कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, ऑल दीज पॉइंट्स विल बी गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ये सारे पॉइंट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। कल के लेक्चर में एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन भी इसकी होंगी, तो इसलिए आप लोग लेक्चर देखते हो सिर्फ देखने का समझने का काम करो, पूरी तरह से कनेक्टेड रहो, जहां क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो, सो दैट विल बी द इंटरएक्टिव क्लास लाइक दिस। तो इसलिए आप लोगों को जहां जहां क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वहां आपका आंसर आने को ना उधर से, यू शुड आंसर। नाउ अगेन आई विल ड्रॉ द सेम डायग्राम टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशन। उसी डायग्राम पे भी निकाल सकता था, फिर एक डायग्राम निकाल लेते। तो अब आपको हर जगह की जाएंगी, हाइट निकल गई मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। पोटेंशियल एनर्जी बाद में काइनेटिक एनर्जी वहां के स्पीड पे डिपेंड करेंगी। तो अब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट बी है, यहाँ भी पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी रहेंगी, वेलोसिटी एट बी। ये एनी पोजीशन पी है, एनी पोजीशन पी पे भी कुछ वेलोसिटी रहेंगी वीपी। ये हाईएस्ट पॉइंट है, सॉरी लेवल ऑफ सेंटर है, यहाँ वेलोसिटी एट सी रहेंगी। ये हाईएस्ट पॉइंट है, एट द हाईएस्ट पॉइंट देयर इज सम वेलोसिटी ए। सब स्टूडेंट्स आर हैविंग डाउट अबाउट दिस पॉइंट। कुछ बच्चों को यहाँ के बारे में डाउट भी आता है कि यहाँ पे जाके रुक जाएगा, अगर रुक गया तो नीचे गिरेगा, उसको मोशन में रहना है। तो एट ए आल्सो वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इट बी मूविंग इन द वर्टिकल सर्कुलर पाथ, देन ओनली द मोशन कैन कंटिन्यू। तो ए बी सी एंड डायमेट्रिकली अपोजिट डी, लेवल ऑफ सेंटर ओ, ये रहा आपका एंगल थीटा। अभी जस्ट लास्ट पेज पे डायग्राम निकाली थी, पॉइंट्स की हमने हाइट लिखी थी। अभी हाइट से सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, सबकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। नाउ व्हाट इज द हाइट एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट सभी की मैं हाइट लिखूंगा, सभी की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा। बॉटम, एनी पोजीशन, लेवल ऑफ सेंटर, हाईएस्ट पॉइंट। At all these points now I can write about this. At the bottom, what is the height at the bottom? Height at the bottom is 0. Height at the level of center is h at c equal to r. Height at the highest point is twice r. These are the heights at the different points. At any position, ये आपको याद रखना है, height at any position p is r in bracket 1 minus cos theta. r in bracket 1 minus cos theta, इसको थोड़ा छोटा लिखूंगा, इकडे लिहितो खाली। Height at any point p equal to r in bracket 1 minus cos theta. सब जगह की हाइट आपने निकाल ली। नाउ यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, सिंपली हाइट मालूम तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएंगी। एट बॉटम, पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम विल बी सिंपली एम जी एच एट बी। एच एट बी कितना है तो 0, तो ये पोटेंशियल कितनी आ गई 0। height at the level of center is, potential energy at the level of center is mg into height at the level of center, that is r,
mgr. At the highest point is twice r. At the highest point h is twice r. The potential energy at the highest point A is mg into twice r. That is how much? Twice mgr. These are different position. Now how will find the potential energy at any position? At any position potential energy will be equal to, यहाँ की potential energy कैसे निकलेंगी? mg, यहाँ की height r in bracket 1 minus cos theta. So this way you can calculate potential energy at every position. सब जगह की potential energy आपने निकाल ली. Now about the kinetic energy. उसके पहले एक बार मुझे थीटा बता दो. At bottom P कितना रहेंगे? OP coinciding. Theta will be equal to 0. लेवल ऑफ सेंटर है तो थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री. हाईएस्ट पॉइंट पे गए तो थीटा कितना आएगा? 180 डिग्री. लाइक दिस. इधर आ गए तो थीटा कितना होगा? पूरा 270 डिग्री. या थीटा विल बी इक्वल टू 270 डिग्री. नाउ काइनेटिक एनर्जीज. काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन इज गिवन बाय, कहीं की अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो सिंपली वहां की वेलोसिटी मालूम होना, जो अभी हम लोगों को मालूम नहीं, हमको वही मालूम करना है आगे बाय डेरिवेशन. सो पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो गई सब जगह की. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अभी तो सिर्फ बेसिक फार्मूला ही लिखूंगा मैं. एट बॉटम हाफ m into vb square. Level of center, kinetic energy at the level of center is half m into vc square. Highest point kinetic energy will be equal to half m into va square. And at the level, at any position, kinetic energy at any position p is half m into vp square. va, vb, vc, vp अभी हम लोगों को मालूम नहीं. Those are to be calculated. वो कैलकुलेट करनी है. हाइट मालूम हो गई इसलिए हमने पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली निकाल ली. जब वेलोसिटीज मालूम होंगे तो वहां की काइनेटिक एनर्जी भी निकलेंगी. और दोनों एनर्जी का sum of the potential energy and kinetic energy will be what? Sum of potential energy and kinetic energy will be the total energy. That is calculated later on. So this way, these are the different about vertical circle. आगे और उसके पहले पॉइंट्स बताए एक बार फिर से रिवाइज कर देता कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में का डिफरेंस क्या डिफरेंस है. बताओ आंसर. पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट इन, अनम्यूट करो सर, अनम्यूट ऑल. पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल. आवाज नहीं आ रहा है किसी का. पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन. इन हॉरिजॉन्टल, बस आवाज बंद. इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट की चेंजेस कांस्टेंट. इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट और चेंजेस. वेरी गुड. अनम्यूट ऑल. बस अब आंसर देना हो गया, चुपचाप बैठो अब, आवाज बंद. इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. दूसरा और एक पॉइंट पूछ सकता हूं. ग्रेविटी अफेक्ट्स इन विच मोशन? हॉरिजॉन्टल सर्कल की वर्टिकल सर्कल. ग्रेविटी अफेक्ट्स इन horizontal circle or vertical circle. Gravity affects in vertical circle and does not affect in the horizontal circle. So about the gravity, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया. सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट की अगर हाइट निकालनी तो कैसे निकाल लेंगे, विद रिस्पेक्ट थीटा, ये एक्सप्लेन किया. h इक्वल टू आर इन बाई 1 माइनस कॉस थीटा से निकाल सकते. बाद में मैंने सभी जगह की आपको पोटेंशियल एनर्जी निकाल के कैसे निकालना बता दिया. कैसे निकालना मतलब हाइट निकालो उसमें रखो बस. पोटेंशियल एनर्जी mgh. काइनेटिक स्पीड पे डिपेंड करेगी. एट ए, एट बी, एट सी, एट डी, लाइक दिस, जो भी पॉइंट्स है. नाउ हाउ द ग्रेविटी अफेक्ट्स इन वर्टिकल सर्कल. वर्टिकल सर्कल में ग्रेविटी का कैसे इफेक्ट होता है उसको हम लोगों को इक्वेशंस में कैसे यूज करना है. हाउ यू हैव टू यूज दैट इन इक्वेशंस. अब एनी ऑब्जेक्ट, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर फेंकते तो ऊपर जाते वक्त उसका स्पीड बढ़ते जाता, कम होते जाता, और नीचे आते हुए उसका स्पीड बढ़ते जाता, कम होते जाता. जब हम उसको ऊपर फेंकते तो ग्रेविटी उसको रिटार्ड करती. वही अब नीचे आने लगता तो ग्रेविटी उसको एक्सेलरेट करती. रिटार्ड्स, एक्सेलरेट, वर्टिकल प्लेन में इफेक्ट हुआ. वैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था. प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट फेंक दिया इधर, तो जब वो असेंडिंग है, असेंडिंग वक्त उसका एक्सेलरेट a इक्वल टू माइनस जी. यहाँ पे गया, नीचे उतरने लग गया तो a इक्वल टू प्लस जी. असेंडिंग पार्ट में रिटार्डेशन, डिसेंडिंग पार्ट में एक्सेलरेशन. मतलब ग्रेविटी अफेक्ट्स. ग्रेविटी अफेक्ट्स इन स्ट्रेट लाइन वर्टिकल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन. अब इसी प्रोजेक्टाइल मोशन को आप सर्कल बना लो.
दैट इज सर्कुलर मोशन। ऊपर जाते वक्त रिटार्डेशन, नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन। तो while going up body will be retarded, coming down body will be accelerated due to this natural acceleration due to gravity। जब कोई सीधा अपना खुद का एग्जांपल लो, आपको बोला कि ब्रिज के ऊपर भागते जाओ और उधर से उतर जाओ, तो क्या मुश्किल लगता है आपको ब्रिज पे चढ़ना कि उतरना? ऐसा बड़ा ब्रिज है बिल्कुल, उसके ऊपर भागते हुए जाना है, उधर से उतरना है। व्हाट सीम्स टू बी इजी, टू डिसेंड कि टू असेंड? To descend it is easy, to ascend it is difficult. Why? While ascending आपका weight आपको पीछे खींचता, while descending आपका weight आपको आगे खींचता। So you get accelerated while descending and you get retarded while ascending। ascending और descending में vertical circular motion में, in vertical circular motion gravity affects। तो gravity का effect कैसे होता? जब बॉडी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तब बॉटम मोस्ट बी, लेवल ऑफ सेंटर सी, हाईएस्ट पॉइंट ए, जैसा सी का वैसा डी का, सब कुछ। लेवल ऑफ सेंटर ओ। अब बॉडी जब ऊपर जाना शुरू करेंगी, ऊपर जाना शुरू किया बॉडी ने, तो क्या? मैं सिंबॉलिकली इंक्रीज डिक्रीज को ऐसे लिखने वाला हूं। ऐसा एरो निकाला, इसका मतलब इंक्रीज समझना। ऐसा एरो निकाला मतलब ऊपर जाना, डायरेक्शन नहीं है। ऐसा एरो निकालना मतलब उसको डिक्रीज समझना, ये इंक्रीज ये डिक्रीज। ऐसे शॉर्ट फॉर्म बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना। शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो मार्क्स सिर्फ डिक्रीज। सो इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। अब ऑब्जेक्ट से सी से ए, ऐसे ऑब्जेक्ट ऊपर 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 जा रहा है। व्हाट हैपेंड टू द हाइट? जैसे अभी जमीन के पास में है, गया ये बी पे है, गया लेवल ऑफ सेंटर, गया हाईएस्ट पॉइंट। व्हाट अबाउट द हाइट गो ऑन? हाइट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? हाइट इंक्रीजेस, अपर एरो मतलब इंक्रीजेस। हाइट बढ़ने से व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल एनर्जी? हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। लेकिन एनर्जी आई कहां से? कुछ तो भी लॉस हुआ होगा। जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी इसको एक्सेलरेट करेंगी या रिटार्ड करेंगी? रिटार्ड करेंगी। रिटार्ड करने से वेलोसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज? नेचुरली उसका स्पीड कम होते जाएगा। किसने कम किया स्पीड? ग्रेविटी ने। ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हाइट इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। the same time velocity is decreasing, that's why kinetic energy is decreasing। तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, कम हो रही है? जब ऑब्जेक्ट सी टू सी टू ए ऐसा असेंड करेगा तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेंगी, काइनेटिक एनर्जी कम होंगी। मतलब किसका लॉस, किसका गेन? आई विल टॉक इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड वेलोसिटी। किसका गेन? हाइट का गेन, हाइट का गेन। और किसका लॉस? हाइट का गेन और लॉस। हाइट विल गेन, पोटेंशियल एनर्जी गेन। सबकी आवाज एक साथ में आने को ना। सो व्हाइल गोइंग अप हाइट इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस। आवाज, हाइट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, हाइट इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। सिमिलरली अब फिर से एक बात, जब ऊपर जा रहा है पार्टिकल तो नेचुरली हाइट बढ़ती जा रही है, हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। लेकिन ऊपर जाते वक्त ग्रेविटी उसको रिटार्ड करेंगी, ग्रेविटी रिटार्ड करेंगी तो वेलोसिटी कम होंगी, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होंगी। तो गोइंग अप लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वही अगर, सॉरी उल्टा बोला मैंने, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस की गेन। जब पार्टिकल ऊपर जा रहे थे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ऊपर से नीचे भी आना है उसको, यहाँ रुक नहीं सकता, आगे जाना है उसको, तभी वो सर्कुलर मोशन करेगा। जब नीचे आना शुरू करेगा पार्टिकल, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स कमिंग डाउन, व्हाट विल हैपन टू द हाइट? अब आ रहा है जमीन की तरफ, हाइट गो ऑन डिक्रीजिंग, हाइट डिक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। नीचे आते वक्त ग्रेविटी क्या करेंगे? उसको एक्सेलरेट, ग्रेविटी से एक्सेलरेट होगा तो वेलोसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। velocity increase तो kinetic energy also increase। so what you can say, while going up height increase, velocity decrease, coming down height decrease, velocity increase। due to this energy effect, while going up potential energy increases, kinetic energy decreases, coming down potential energy decreases, kinetic energy increases। means while going up loss of kinetic energy, gain of potential energy, coming down loss of potential energy, gain of kinetic energy। एंड इफ देर इज नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि कोई एनर्जी इनपुट देगा या कोई इसमें से एनर्जी निकाल लेगा, ऐसा अगर कुछ भी नहीं है, देन इफ देर इज नो इनपुट, देन
neither energy given nor taken, then by law of conservation of energy, by law of conservation of energy, what you can say, by law of conservation of energy, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन रहेंगी. आप लोग जो बहुत सारे डाउट पूछने वाले हो, मैं हमेशा यही बोलूंगा कि यहीं से वो सॉल्व होगा क्वेश्चन. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब पार्टिकल असेंड कर रहा है, व्हाइल असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है, व्हाइल असेंडिंग मतलब जब वो बी से सी से ए जाता रहेगा लाइक दिस, कौन सा लॉस कौन सा गेन. लॉस मतलब क्या होता है, लॉस मतलब इनिशियल मोर की फाइनल मोर. लॉस, पहले मेरे पास में 100 रुपए थे, अब 60 हो गए, लॉस हो गया. तो क्या ज्यादा है, इनिशियल मोर की फाइनल मोर. लॉस मतलब इनिशियल मोर फाइनल लेस, इसलिए तो लॉस हुआ. गेन मतलब पहले कम थे बाद में बढ़ गया. फाइनल इज मोर दैट इज गेन, फाइनल इज लेस दैट इज लॉस. तो लॉस और गेन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को डायरेक्ट डिफरेंस निकालना है. तो ऊपर जाते वक्त किसका लॉस है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. नीचे आते वक्त लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब, when the particle is going up, then what, loss of which energy, loss of, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब loss of which energy, loss of kinetic energy and gain of which energy and gain of potential energy. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गेन ऑफ इन पोटेंशियल एनर्जी. ऑफ भी लिख सकते, इन भी लिख सकते. गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. लॉस, लॉस मतलब, तो इनिशियल कौन सा पॉइंट है बी, फाइनल कौन सा है तो ए, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट डी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए. गेन इन एनर्जी, पोटेंशियल बढ़ने वाली है, ऊपर की ज्यादा रहेंगी. पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट डी. ये इक्वेशन आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के. ये किसके लिए हो गया, असेंडिंग के लिए हो गया. अब ऐसे ही जब पार्टिकल नीचे आएगा, नीचे आएगा मतलब बी टू डी टू सॉरी ए टू बी डी टू बी, नीचे आ रहा है पार्टिकल. पार्टिकल अगर नीचे आ रहा है तो फिर कौन सा लॉस कौन सा गेन, नीचे आ रहा है पार्टिकल, ऊपर गया असेंडिंग, बी टू सी टू ए, अब नीचे आने वाला है तो फिर ए टू डी टू बी. while descending, while descending हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए टू डी टू बी. नीचे आ रहा है पार्टिकल, लॉस कौन सा गेन, लॉस ऑफ विच एनर्जी, नीचे आना मतलब हाइट का कम होना और एक्सेलरेट होना, मतलब गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो इट इज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी must be equal to gain in kinetic energy. जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो गेन होगा काइनेटिक एनर्जी का, लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी का. लॉस मतलब फाइनल कम, गेन मतलब फाइनल मोर, इनिशियल लेस. लॉस निकालना है लार्जर माइनस स्मॉलर. लार्जर कौन सा रहेगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल हाइयर का, पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, नीचे आ गया. काइनेटिक एनर्जी बॉटम में ज्यादा रहने वाली है, बी माइनस ए. सो दिस इज द इक्वेशन अगेन रिक्वायर्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. अगर इन दोनों को आप अच्छे से सॉल्व कर पाए तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे. वर्टिकल सर्कुलर मोशन के आपको बुक्स में बहुत सारे फार्मूले पढ़ने को मिलेंगे. वेलोसिटीज कहाँ कितनी है, रूट ऑफ 5 g, रूट ऑफ 3 g, रूट ऑफ 1 g, ये सारे फार्मूले. बट दोज आर एप्लीकेबल फॉर पर्टिकुलर कंडीशन. कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन है उनके लिए एप्लीकेबल है. दोज आर नॉट यूजफुल एवरीवेयर. और जनरली नीट में जो क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है. 18 के आप एग्जाम देखो, उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, जिसका आंसर सारे बच्चों को मालूम रहता है 5/2 उसका आंसर था. कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसके ऊपर पूछते हैं, लेकिन वो सिंपल किसके लिए रहता है, जिसके कंसेप्ट क्लियर है. रट्टा मारने वाला अगर है तो उसके लिए वो सिंपल नहीं रहता, जिसने रट्टा ही नहीं मारा उसको कुछ ज्यादा ही नहीं है. तो इसलिए कंसेप्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करो. कंसेप्चुअली सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिंपल सी बात है, ऊपर जा रहा है मतलब हाइट बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है. ऊपर जाते हो ग्रेविटी की वजह से स्पीड कम होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है. नीचे आ रहा है तो हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है. नीचे ग्रेविटी उसको एक्सेलरेट करती है, मतलब वो एक्सेलरेट होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी. यूजिंग दिस टू सेंटेंसेस, टू इक्वेशंस, you can easily solve any question in vertical circular motion. आप लोगों को जो असाइनमेंट दी हुई है उस असाइनमेंट में लास्ट में वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस है.
वो क्वेश्चंस करने के लिए अभी आपको और 2 लेक्चर लगेंगे। ये 2 लेक्चर के बाद में वो सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। मैंने कल भी बताया कि जो असाइनमेंट आपको दिए हुए उसमें स्टार्टिंग में बहुत सिंपल सिंपल और इजी इजी क्वेश्चंस है। वैसे क्वेश्चन कभी कोई एग्जाम में नहीं आते। फिर क्यों दिए आपको? वो इसलिए दिए कि आपके फॉर्मूलों की उसमें प्रैक्टिस हो जाती, कौन सा फॉर्मूला कहाँ कैसे यूज होता, क्या कनेक्टिविटी है। जस्ट फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ द फॉर्मूलीज एंड रिवीजन ऑफ द फॉर्मूलीज वो सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आप करके रखो। हम लोग ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन 2 दिन में खत्म होने के बाद में, 2-3 दिन में खत्म होगा, उसके बाद में हम लोग इसको सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो वाइल डूइंग दोस न्यूमेरिकल्स पहले आप लोग करके रखो, तो फिर मैं जब सॉल्यूशन बताऊंगा तो आप लोगों को वो न्यूमेरिकल्स क्या है एग्जैक्टली कैसे करने थे वो समझ में आएगा, आपका कहाँ गलत हुआ। अगर आपको करेक्ट आया तो वेरी गुड, रॉन्ग हुआ तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। दीज आर सम पॉइंट्स। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको काफी सारे जो एग्जांपल्स पढ़ने हैं कि भी कौन से टाइप के वर्टिकल सर्कुलर मोशंस आपको पढ़ने हैं। जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन बताए थे कि मोशन ऑफ व्हीकल ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड, फिर इंक्लाइंड रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, फिर मौत का कुआं, फिर कोनिकल पेंडुलम, फिर रोटर, फिर वो फनेल का क्वेश्चन दिया था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हो गए थे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के। वैसे ही अब यहाँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी पूछे हुए क्वेश्चन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे, और इसका काम आपको वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ने वाला है। वहां पर भी आपको कोई लिफ्ट का क्वेश्चन रहेगा, लिफ्ट ऊपर गई इतने स्पीड से गई, तो ऐसे बहुत है। लेकिन बेसिक्स उसके, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी देन टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, जा रहा है लॉस ऑफ गेन जा रहा है पोटेंशियल गेन ऑफ काइनेटिक। ये बेसिक इजी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और एक पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स तो लगता ही लगता। विच फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके सिवा तो सर्कुलर मोशन होता ही नहीं। सर्कुलर मोशन में 2 फोर्सेस पे हमेशा फोकस करना, एक तो उस ऑब्जेक्ट का वेट कौन संभालेगा, दूसरा सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा। ये 2 पॉइंट्स मिल गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई भी क्वेश्चन हो सर्कुलर मोशन का, वेट कौन संभालेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, ये 2 पॉइंट्स मिल गए, क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अब वेट तो यहाँ अफेक्ट करने वाला है मोशन अंडर ग्रेविटी में, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन है पूरा। सो दीस आर सम पॉइंट्स। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे मैंने ये बताया आपको, ऑब्जेक्ट टाइड टू स्ट्रिंग, ये ऑब्जेक्ट टाइड टू स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट टाइड टू स्ट्रिंग एंड रिवॉल्व इन हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया। यही वर्टिकल सर्कल में भी घूम सकता है ऐसे, इसको हम लोग 3D जैसा दिखते का सर, जो वाला सर्कल, तो ये एकदम बिल्कुल ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन टुवर्ड्स यू लाइक दिस, ऐसा भी इसको दिखा सकते हैं पूरा। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, दोनों। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ग्रेविटी तो अफेक्ट करने वाली है। तो 2 टाइप के रहेंगे, यहाँ स्ट्रिंग का सपोर्ट है, यहाँ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग होने वाला है। जरूरी नहीं हमेशा स्ट्रिंग ही रहेंगी। ब्रिज का है, ये ओवर ब्रिज है, इस ब्रिज पे से गाड़ी जाने वाली है। अब इस गाड़ी जब ब्रिज पे से जाएंगी तो इसको क्या कोई रस्सी से बांध के रखा हुआ है क्या इधर जाने के लिए? उसको ब्रिज का सपोर्ट है, यहाँ स्ट्रिंग का सपोर्ट है। सभी बुक्स में कंडीशन पहले इस कंडीशन से एक्सपेंड है, लेकिन यहाँ कंडीशंस कुछ चेंज हो जाती है, फार्मूले वही लगते हैं, लेकिन जो इसमें मैक्सिमम है वो उसमें मिनिमम है, ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये एक हो गया। दूसरा, ऑब्जेक्ट टाइड टू स्ट्रिंग, दूसरा एग्जांपल शायद आप लोगों ने सभी ने करके देखा होगा। एक कि आप बकेट, छोटी एक बकेट ले लो, इसमें 2-3 लीटर पानी होगा, तो उस बकेट को आप ऐसे लेके घुमा सकते हैं, ऐसे पानी नहीं गिरता नीचे। कभी करके देखा हुआ है? आई थिंक सबने करके देखा हुआ है, बचपन में करके बता दे, देख बेटा मैं तेरे को बताता पानी भी नहीं गिरता, ऐसे घुमा के बता दे एक दूसरे को। तो अगर ऐसा कोई बता रहा है तो उसको बोलना मेरे को पानी देखना है कहाँ है। तो मतलब जब हम घुमाते हैं उस बकेट को तो एक पर्टिकुलर स्पीड या उससे ज्यादा स्पीड से घुमाएंगे तो वो पानी नहीं गिरेगा। अगर स्पीड उससे कम हो गया तो पानी नीचे क्या होता है, अगर किसी ने बोला कि मेरे को पानी ही देखना है, आराम से घुमा के देखता, बकेट भर ले पूरी और ऐसे आराम से लेके जाओ ऊपर, और यहाँ जाकर रुक जा थोड़ी देर, देख ले पानी को, फिर नीचे लेके आओ बकेट, सिर्फ बकेट ही नीचे आएंगे, पानी पहले नीचे आ जाएगा। वाई? ग्रेविटी। जब एक पर्टिकुलर स्पीड से वो पानी घुमा रहे थे आप तो नीचे नहीं गिरता, वो स्पीड अगर उससे कम हो गया तो नीचे गिरता। तो वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्पीड की जिससे कम स्पीड नहीं चलता, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करना, वो हम आइदर फॉर ब्रिज सीख सकते, और या वो बकेट वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया अभी कि बकेट है, बकेट में पानी भर के हम लोग उसको घुमा रहे, बकेट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के घुमाते घुमाते बकेट में पानी भरा हुआ था, पानी नहीं गिरने को होना,
तो बकेट एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर घूमती है तो ही पानी नीचे गिरेगा, नहीं तो पानी नीचे गिरेगा। यही कंडीशन लगती है इस पत्थर के लिए। स्टोन है, रस्सी से बांध के रखा है, घुमाया है इसको, यही कंडीशन लगती है। आपने सर्कस में कभी देखा होगा कि एक स्पीयर रहता, बड़ा हॉलो स्पीयर, उस स्पीयर में मोटरसाइकिल चलाते। मौत का कुआं अलग, मौत का कुआं ये ऐसा रहता, वर्टिकल रहता ऑलमोस्ट। उसमें हम लोग यहाँ बाहर बालकनी में खड़े रहते देखने के लिए, ये ऐसे खड़े रहते हम लोग यहाँ पे देखने के लिए उसको, और वो अंदर गाड़ी चलाता है। ये गाड़ी जो चल रही है, ये गाड़ी हॉरिजॉन्टल सर्कल में चल रही है, लाइक दिस। वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो गया। वही हम स्पीयर की अगर बात करेंगे तो ये स्पीयर में भी गाड़ी चलाते हो, वो गाड़ी ऐसे चलाते हो ऊपर नीचे। पहले गाड़ी नीचे रहती है, वो अंदर जाके बैठता, फिर गाड़ी शुरू करता ऐसा आगे पीछे, फिर जोर से पूरा घूम जाता। तो पूरा जब घूमता तो यहाँ पर जैसे यहाँ पानी नीचे गिरता वैसे यहाँ बाइक भी नीचे गिर सकती। यही कंडीशन दोनों को अप्लाई होती। तो ये जो इधर का पार्ट है, ये पार्ट ब्रिज की अलग कंडीशन है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको ये सारी कंडीशंस पढ़नी है। सो इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन पहले हम लोग इससे पढ़ेंगे, फिर इधर जाएंगे। अभी आगे आपको कैलकुलेट क्या करना है, निकालना क्या है। इस ऑब्जेक्ट का वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्रिटिकल स्पीड, मैंने अभी बोला कि उससे कम अगर स्पीड हो गया तो ऊपर जाके नीचे गिर जाएगा। ऐसे गया ऊपर, आ गया नीचे, सर्कुलर पूरा नहीं हो पाया। तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग उसको पहले पढ़ेंगे, बाद में उसको बकेट के लिए, ब्रिज के लिए क्या चेंज होता, क्या चेंज नहीं होता, उसको पढ़ेंगे। तो दीज आर द पार्ट्स टू बी लर्न इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये दो बेसिक प्रिंसिपल, लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आज नहीं तो कल मिल जाएगा, आज रेडी नहीं है, कल मिल जाएगा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। ये पूरे डायग्राम, वी डायग्राम सब कुछ आएगा ये। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का एक बार थर्ड पूरा सारे फार्मूले रिवाइज करके रखो, उसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन अपना परसों तक के मैक्सिमम कंसेप्ट्स हो जाएंगे, फिर एक दो दिन लगेंगे उसके न्यूमेरिकल्स के लिए, फिर वो भी पूरा हो जाएगा।